चलो Now, हाँ मिल जाएगा। ये लो। ये लो, किसको चाहिए? ओके। कुछ चीजें पूछनी है आपसे, ठीक करना है। ये लो। Now, draw labeled diagram. Of sperm, female reproductive system. Write a note on female reproductive system. चलो नहीं लगा, वो तो शोभा बढ़ा रहा है। ये डायग्राम बनाना है, ये बनाने के लिए जो बुक में लेबल है वही करने के बाद बस वही उतनी वो ये नहीं करना बुक का लिखो क्या है, बस वही click कर। ओके, इसका ध्यान से ये लो, तुम्हारा पेपर गिर गया। हाँ वही बनाओ। सर लिखना भी वही वाला है ना, हाँ? बिना देखे। सर लिखना भी वही वाला है। हाँ, वही हमने ही भी लिखाया, वो तो नहीं लिखा। यहाँ तक है ना? हाँ वही तो नहीं लिखा। चलो स्टार्ट करो। हाँ बोलो। When fertilization takes place in the mother womb, then it is called internal fertilization. What does it mean by external fertilization? So when the fertilization takes place outside the body of female womb or female body, then it is called external It is fertilization. called. So example of external fertilization. Sir, frog, fish. Fish. And what is the example of internal fertilization? Sir, you What went do you? down. What is the full form of IVF? जिससे पूछा जाए वही बताएगा। हाँ। हाँ बोलो। In vitro fertilization. What does it infer? So it refers that if a female can't if a female oviducts are blocked, then she is not able to she is not capable of giving birth to a baby. Then it ensures that it can be possible by taking fresh released eggs of a female and sperms of male, and then the doctors use the sperm and the egg, and this forms zygote. Then the zygote is placed in female uterus. So it is developed 2 to 3 weeks Yes. in lab condition, then it is implanted. Yeah, it is inserted in female body, so mother's womb. It is called in vitro. What
बिल्कुल हर चीज बता दी। इस चीज को आप बताओ। IVF ऐसे ही बताइए जैसे इंग्लिश में तो बोला था पूरा। हाँ। Sir, IVF stands for in vitro fertilization, in which that mother's that ovary is blocked, so that cannot take place of birth. So in this, the sperm and eggs are take outside and they take fertilization and fit it in the body. It is also called as babies. आपके प्रीपोजिशन और वर्ड्स अच्छे नहीं है तो सेंटेंसेस सारे ही गलत हो रहे हैं। बोलो पलक, व्हाट इज IVF टेक्निक? बताया करो। Sir, full form of IVF is in vitro fertilization. In this, when the mother would not be able to give birth to child because its oviduct was blocked, so his बहुत egg मतलब है इस ब्लॉक। is blocked. So freshly released egg from mother released and eggs from mother and freshly released sperm from the father will be kept for few days. collected fertilization is done in Test tube हाँ. and then it is released. over allowed to grow for 2-3 weeks and inserted in mother's mother's womb. womb and Their baby grows. ठीक है? Full fledged. That is called in vitro fertilization. What does it mean by menstruation? Menstruation में फिर लैंग्वेज के बारे में बताओ। नाम देखो। हाँ, menstruation. Blood and mucus flows out through vagina and this is called menstruation. What is menstrual cycle? नहीं चलेगा, बोलो शादी। Some menstrual cycle is a period of 28 days हाँ. in which in the 16th day egg is released and the life of egg is 1 day. So making of that is endometrium. Endometrium का मतलब है blood and mucus lining in mother's uterus and breaking if egg is not fertilized. देखो making of blood and mucus spongy blood lining in mother's womb and breaking of it. ठीक है? If egg is not fertilized. It all takes place of a cycle of 28 days. This is called menstrual cycle. When the first menstruation is seen in female, then it is called menarche. When the last menstruation, if the menstruation ceases in female, then it is called menopause. So what is the reproductive age in female? So 10 to 12. 10 to 12. बताइए 45. 10 to 12. Menarche to menopause is the reproductive age of female. Menarche कब होती है? जब 10 से 12 साल में. What does it mean by puberty in male and female? बोलो मैम. Sir, the releasing of eggs in female body is called puberty. So this occurs in 10 to 12 years of age. And what does it refer to male? Sir, when the बोलो Sharif. Sir, That is start of when male
starts releasing sperms, then it is called puberty. बात समझ में आ गई कि नहीं? जब स्पर्म्स रिलीज हो जाए तो उसका कब से कब एज है? 12 to 14. What is parturition, निखिल? अच्छी बात है. आयुषी? Sir, parturition when the baby is in the mother's womb. No, that is gestation. The period during which ये baby is growing in mother's womb is called. ठीक ठीक बोलो. वो तो gestation बोल रही है. What is parturition? Delivering a baby out is called parturition. What is umbilical cord, Ria? The tube is connected to baby and the mother's womb. Yes. And what is the purpose of it? It takes nutrition and gives the waste products to the mother. Okay. What is fetus? Fetus is the age when the parts of the baby develop and now the gender of the baby can be determined. When the fetus is formed? After 2 months. After 2 months. What is embryo? Embryo is the next stage of zygote. It develops after 5 days, and it is placed in mother's uterus. Yes. What is the age of sperm and what is the age of egg? 3 days. What is vasectomy and pubectomy? बोलो. Sperm duct in female Sperm duct in male and oviduct in female. That is fallopian tube. Is called pubectomy. अब देखो. Now कुछ चीजें हम लिखेंगे जिससे आगे का पता चल जाए. क्रॉस का हमने आपको दिखा दिया था. अगला पेज देखिए. अगले पेज में आपको ओवरी दिखाई पड़ रही है. नेक्स्ट पेज निकालो. क्या नाम बताया बेटा? 1-2 बार पूछेंगे फिर याद हो जाएगी. बोलो. ज्योति. ठीक है. अगला पेज 9.8 फिगर निकालो. तो 9.8 फिगर में क्या दिखाया गया है कि ये देखो, बात नहीं करो. यहाँ पर दिखाया गया है कि ये दैट इज आद्या. इसको क्या कहते हैं? इस अगले पोर्शन को. और ये तो हो गया ओवरी. और यहाँ पर क्या होगा? दैट इज ओवरी, जो कि दिस इज यूट्रस. अब यहाँ देखिए, पहले एग धीरे धीरे बड़ा हुआ और फिर क्या एग रिलीज हो गया इस ओवरी में. यहाँ पर क्या दिखाया गया है? एग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ये ग्रो हो गया, डेवलप हो गया, फिर निकला. अब जब इसमें से निकला तो ये एग आगे बढ़ा. इसको कहते हैं फनल ऑफ ओविडक्ट. इसका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है. ये इससे अंदर ले लेता है एग को. ठीक है. तो दिस इज, इसको क्या कहेंगे? फनल ऑफ ओविडक्ट. तो आपके में ये बना है फनल ऑफ ओविडक्ट और इसी से एग चला गया अंदर. अब ये एग कहाँ जा चुका है रैयान? किसमें जा चुका है? ओविडक्ट में जा चुका है. तो ओविडक्ट में जाने के बाद अब यहाँ जरा देखिए, इन्होंने बताया है ओव्यूलेशन. सो व्हाट डज इट मीन बाय ओव्यूलेशन? Releasing of ovum by ovary is called ovulation. Repeat करो. Releasing of ova from ovaries known as ovulation. ओवम बोला करो. ओवा प्लूरल हो जाएगा. ठीक. तो ओव्यूलेशन क्या बताया? ओव्यूलेशन. Releasing of ovum from ovary is called ovulation. इसे क्या कहेंगे? मतलब एग का निकल जाना, इसको कहेंगे ovulation. अब जरा देखो,
जब ये चीज निकल जाएगी तो फिर निकलने के बाद एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इसको कलेक्ट करेगा। जैसा कि ज्योति इसमें तुम देख सकती हो, ये ओवरी है और ओवरी में से एग निकल रहा है, यहाँ से एग निकला और अब निकलने के बाद ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर जाएगा ऑब्जर्वेशन। ये फिंगर है, अभी वीडियो में भी दिखा देंगे। चलो अब इसके बाद क्या हुआ बताइए। नाउ ये अभी ओवम है, दिस इज अगर मान लीजिए इसके पास एक स्पर्म आ गया ऐसे, अब स्पर्म में भी न्यूक्लियस है, अब वो इससे आगे चल के फ्यूज कर गया तो इसमें दो न्यूक्लियस हो गए, दैट इज फ्यूजिंग ऑफ मेल न्यूक्लियस एंड फीमेल न्यूक्लियस, या फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट इस कॉल्ड, अभी से कहेंगे फर्टिलाइजेशन हो गया है। और इसका नाम अब ओवम नहीं रहा, ये स्पर्म है और फिर अब इसका अगला सफर है, ये बन गया जाइगोट। और इसकी ये जो पूंछ है स्पर्म की, ये डिजनरेट हो जाएगी, मर जाएगी, अपने आप डिके होके गिर जाएगी। अब ये बन गया जाइगोट। लेकिन क्या जाइगोट के आगे का सफर भी तुमने देखा इसमें? क्या लिखा है? ये जो सिंगल सेल है देखो, दो में बदला, ये सिंगल सेल किसमें बदला? अब दो कितने में बदलेंगे? चार में, और फिर चार, 5, 6, 7, 8, और ऐसे करके इनमें 8 फोल्ड डिवीजन होगा। ये तो मैंने 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, अभी 4 ही फोल्ड पे पहुंचे हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8 फोल्ड में न जाने कितना हो जाएगा। तो इस तरीके से डिवाइड होके जब 8 बार डिवाइड होगा तो फिर ये आगे चलकर यहाँ पर जो ये यूट्रस है, तब तक यूट्रस में क्या थिक और स्पॉन्जी लाइनिंग डेवलप हो चुकी होगी। Yes, sir. ये जो स्पॉन्जी लाइनिंग इसमें डेवलप हुई है, यही चीज और बड़ा होगा और बड़ा होकर के 16 से 32 हो जाएगा, और 32 होने के बाद धीरे धीरे ये ऐसा 5 दिन तक बढ़ता रहेगा। 5 दिन के बाद ये एम्ब्रियो हो जाएगा। क्या तुम अपने बुक की सी फिगर देखो, उसमें तुमने ये देखा है कि इम्प्लांटेशन क्या है? इम्प्लांटेशन का मतलब है इसी ब्लड और स्पॉन्जी लाइनिंग में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, वो किस में लग जाएगा? दैट इज ये जो स्पॉन्जी लाइनिंग है ब्लड की, तो उसमें लग जाएगा। और आफ्टर दैट, है ना, ये तो आपको आपने पहले वाले फिगर में देख लिया था। ये सब इसकी लाइनिंग है ब्लड एंड म्यूकस की। यही तो मेंस्ट्रुएशन में बाहर निकलता है। मान लीजिए फर्टिलाइज नहीं हुआ, और ये चीज क्या है बताइए? ये प्लेस, इस चीज को बता दिया इन्होंने, प्लेसेंटा। पहले ये सब पढ़ के आने लग रहा है, तो इन्होंने बता दिया दिस इज प्लेसेंटा। में अगर मान लीजिए ये चीज आ करके इस पे इम्प्लांट हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। सो अटैचिंग ऑफ, किसका अटैच हो जाना बताओ? एम्ब्रियो टू प्लेसेंटा इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। बहुत अच्छा, इस बात को फिर से बोलो शौर्य। Placing of embryo into placenta is called implantation. देखो इस बात को, so implantation, that is attaching, attach हो जाएगा of embryo to placenta disc। ठीक है, इन यूट्रस। अगर तुम्हें यूट्रस डिफिकल्ट लगता है तो मदर्स वॉर्म लिख सकते हो, माँ का गर्भ, मदर्स वॉर्म, दोनों ही चल जाएंगे। यूट्रस बुक में सब जगह लिखा रहता है। इस कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इम्प्लांट हो गया बेबी, कहते हैं इम्प्लांट हो गया बेबी। अच्छा, फर्टिलाइजेशन क्या है? That's generate embryo. ठीक है, That generates zygote. मेल एंड फीमेल गेमीट is called fertilization।
ठीक है। और फर्टिलाइजेशन निखिल कहाँ होता है? सर so we have सो हम लोगों की मतलब ह्यूमन में ये ओविडक्ट में होता है, ठीक है। सो इट टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट एंड इट फॉर्म्स जाइगोट, इट फॉर्म्स जाइगोट। सो जाइगोट बनाएगा एंड इट टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट, ये ओविडक्ट में होगा, ओविडक्ट। अच्छा यही है ओविडक्ट, ओविडक्ट। अब देखो जाइगोट तो बन चुका है, व्हाट इज एम्ब्रियो? sir after 5 days After 5 days, the Zygote grows and after 5 days it develops as embryo. So और यहाँ अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो ही लिखना है। So zygote grows and after 5 days it becomes a group of cells, मतलब लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाएगा, तो इट बिकम्स एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इज ग्रुप ऑफ सेल्स। अभी इसमें बच्चे का कोई मस्तिष्क नहीं डेवलप हुआ है, बस एक ग्रुप ऑफ सेल ही है। एम्ब्रियो इज ग्रुप ऑफ सेल्स। अच्छा, नाउ fetus, शौर्य, what is fetus? sir after 2 months when the baby gender is determined is called fetus. That is after 2 months of development, embryo further develops and after 2 months, now baby's gender can be determined. It is called fetus. fetus जो हो सकता है, मेल fetus भी हो सकता है और फीमेल, और साइड का मतलब होता है किलिंग। तो अगर कोई फीमेल फीटिसाइड करता है तो कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या कर दी उसने, और ये एक अपराध है जो गैर जमानती अपराध है, 5 साल की सजा 2 लाख जुर्माना। देख लो। सो व्हेन एम्ब्रियो develops further, embryo फिर develop हुआ, then after 2 months gender of baby, और भी सब चीजें बन गई हैं, gender of baby can be determined. It is called fetus. Fetus may be of male fetus or female fetus. So it may be male fetus or female fetus. Now, female feticide is non-bailable crime. फीमेल फीटिसाइड का क्या मतलब है? फीटिसाइड, देखो फीटस और प्लस साइड, साइड मतलब सर किलिंग ऑफ हाँ, fetus. तो दैट इज फीटस और प्लस साइड, दैट इज killing of girl child in mother's womb, killing of girl child, ठीक है, in mother's womb is that is crime. अब आपकी बुक में बी को क्या दिखाया गया है? दैट इज बॉल्स ऑफ सेल्स। तो ये अब एम्ब्रियो बन चुका है। क्या आपने देखा बेबी की क्या पोजीशन रहती है मदर्स के बाद? इसका सर पहले निकलता है, जैसे कि हमने आपको वीडियो में बताया था। अब जरा देखिए कि
आपको कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, 1 2 3 4 5 डेफिनेशंस लिखनी है। और कौन सी? और कोई फिगर नहीं बनाना है, कुछ नहीं बनाना है। एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और इसके अलावा इनको डिफाइन करना है एंड राइट अ नोट ऑन IVF टेक्निक। करके दिखाओ। नोट पूरा लिखना है, ये भी करना है सही। ये सब कुछ नहीं करना है, वो अगली बात करा। वो बात नहीं कराएंगे, गली पर से पहले ये करो। सर अभी ये जो आपने क्वेश्चन लिखे वही करना है ना? हाँ यही करना है। और ये 5 डेफिनेशन वो बात नहीं, अगले पेज पे। हाँ, इतना पेज घूमना है। कुछ समझ में आया? IVF टेक्निक 2-3 लोगों से सुनवा दिया, आपको कहाँ बनाए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के डिफिनेशन बताइए। अगर फर्टिलाइजेशन माँ की बॉडी में होता है, जैसे इसमें स्पर्म अंदर चला गया तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। मान लीजिए कि मदर और फादर, ये लोग उधर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सो ये देखो, अगर फर्टिलाइजेशन बाहर हो, जैसे कि मेढक और मेढकी बाहर स्पर्म और ओवर छोड़ रहे हैं पानी, तो अब ये फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं हो रहा, फीमेल की बॉडी के बाहर है, तो इस चीज को क्या कहेंगे बताओ? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और अगर यही मेढक फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म छोड़ता तब उसे क्या कहते हैं? इंटरनल। तो ये रिस्पॉन्स आर इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन मदर्स बॉडी, then it is called internal fertilization. If fertilization takes place outside female body, then it is called external fertilization. बात समझ आ रही? IVF टेक्निक थोड़ा बहुत तो लिख लो। हाँ? ये बिल्कुल इतना लिखा है। चलो। देखो, जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? गर्भधारण की अवधि, द पीरियड ड्यूरिंग विच बेबी ग्रोज इन मदर्स वॉर्म, मदर्स के वॉर्म में जितने दिन तक रहेगा इज कॉल्ड gestation period. In unit, it is of 9 months. हाँ, period. In human, it is of 9 months. This is gestation period. Okay. Now, when baby develops fully, then it is delivered. ठीक है? So when baby develops fully, gestation period is over. जब gestation period over हो जाएगा तो बेबी क्या हो जाएगा? डिलीवर कर दीजिएगा। Baby develops fully after gestation period. अब इसका मतलब है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है। It is delivered
ठीक है. नाउ अब देखिए व्हाट इज विविपेरस एनिमल्स. The animal which give birth to child are called. बोलो कुछ बोलो तो भाई. हाँ बोलो बोलो. आँख ही बंद कर देती हो. So that is the animals which give birth to young ones are called. एक बार कुछ भी पहले से एग्जांपल दो. हाँ. एग्जांपल डॉग, ह्यूमन. अब एक बात कहिए ओविपेरस एनिमल्स. ठीक है. सो animals. Mansi, what does it mean by oviparous animals? Shreya बोलो. The animal which lay eggs. hen के लिए hatching period आपकी बुक में क्या दिया गया है? The animals बुक में दिया है which lay eggs, जो एग ले करते हैं आर कॉल्ड ओविपेरस. ओवम, ओवम समझ में आता है जो अंडा देते हैं. ओवम तो अंडे को कहते हैं, तो उसी से ओविपेरस ये शब्द बना है ओवम से. तो ओवम यानी जो अगर अंडा दें, तो ये इसका मतलब नहीं है कि जैसे बच्चे के 0 नंबर आ गए तो पेरेंट बोले तुम अंडा दे रहे हो क्या. वो वाला नहीं है, ये दूसरा अंडा है. दैट इज इट इज कॉल्ड ओविपेरस. सो अब उसमें क्या होगा? यंग वंस कम्स आउट फ्रॉम इट इफ सफिशिएंट वार्मथ इज गिवन टू इट. उसको गर्मी दी जाए तो क्या hen अपने अंडे पर बैठती है? और उसको वार्मथ देती है. दैट इज हैचिंग. हैचिंग पीरियड का मतलब क्या होता है कि हैचिंग पीरियड इन hen is of 3 months. ठीक है. नाउ हैचिंग पीरियड इन hens is of 3 weeks. ठीक है. और हैचिंग पीरियड में क्या होगा? इफ अगर मान लो उसे वार्मथ दी जाए, देन चिक comes out from breaking the egg shell. egg shell को तोड़ के वो बाहर निकल आएगा चिक, और फिर उसके बाद वो चूजा बाहर फुदकेगा. ओके. नाउ ये तो बात हो गई. कौन कौन से ऐसे हैं फ्रॉग, लिजर्ड, बटरफ्लाई और मॉथ. सो हम लोग जानते हैं अंडा कौन देते हैं. एग्जांपल बताओ. जैसे बर्ड हो गई, और लिजर्ड्स तो रेप्टाइल जानते हो. लिजर्ड, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, स्नेक. ठीक है, इतने ही है. तो दीज आर लेइंग एग्स. बाकी आगे की बात हम लोग देखेंगे कि द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, ये कल देखेंगे. परसों. चलो जमा कर दिया. जमा करो ज्योति.